slowly and gradually, you are able to feel that you are flying in the sky. You are flying, you are floating in the air. Just flow with the air, wherever the air is taking you. You are able to go there. Feel the lightness. You have become lighter as a feather. You are unable to feel your body. You are moving upwards towards the sky. Slowly, you are able to see the big blue sky. Just try to see the sky. The boundless, limitless sky, open sky, blue sky. You are flying like a bird in that big blue sky. Just try to feel the lightness. Flapping your hands like a feathers, and you are flying in the direction wherever you want. There are no obligations, no responsibilities, no work pressure, no stress. Nobody there to order you. You are alone in the big blue sky. Just try to fly in the sky. You are enjoying this phase of life where all the toxic elements has been released out. Feel the calmness, the coolness within you. Feel the positivity. Feel the blissfulness within you. You are able to connect with yourself. Now slowly, you are moving ahead and ahead at some spatial destination. And that destination is a forest, the green forest, where you went before also. Just try to see that forest. Greenery all around you. That forest, which may be your favorite forest, where you have visited many times, or you have seen somewhere, the green forest. You are able to see the green bright particles all around in the surrounding. You are in the nature. You are enjoying the fresh oxygen, fresh air all around you. You are enjoying the nature. Just try to see the nature.
Feel the movement. As you are moving ahead, you are getting more and more relaxed. Feel the relaxation. Just try to feel how your whole body is getting green and green. The green particles, bright particles, are getting bonded with you, are healing your body, healing you mentally and physically both together. As you are inhaling, those green particles are going into your body and healing you from inside. Feel the relaxation. Feel the healing. It is healing, it is curing you from all the maladies, from all the diseases, from all the problems. The nature has exuberant energy. The nature is healing you. The nature is giving you infinite energy. Feel the nature which is nurturing you. उस आनंद को महसूस करें. Feel the blissfulness. भीतर का आनंद, उसको अनुभव करें. How all the cells are getting rejuvenated. सारे अंदर के सेल्स नए हो रहे हैं. Try to feel it. And you are able to see a green air bubble around you, which is getting formed in the form of energy. It is like a balloon. You are inside that balloon, that energy. That energy will remain with you. Your aura has got purified. You are able to feel that you are radiating green, white, bright particles, sparkling green particles from your body. Now slowly, with that energy, you are able to feel that you are again coming in the moment where you are sitting, and you are able to feel the energy all around you, the energy which will help you throughout your life, which will help you to achieve anything, which will help you to get rid of the obstacles. You can do anything. Try to see that energy all around you. You can influence anything, anybody. Just try to feel it. Now take a deep breath.
and with the chanting of Om, just try to feel how you are radiating that energy and how your aura is getting more powerful. Take a deep breath. Second time, try to make it elongated and louder as much as you can. Third time. Last time. Now you will be repeating a sentence with me. I am ever growing and ever glowing. 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 Now just try to have a moment in your hands. Feel your hands, rub your hands and put it on your eyes, and with a glorious smile you can open your eyes and you can feel the surrounding. अब कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछूंगा. आर यू रेडी फॉर दैट क्वेश्चन? ओके. जो आप लोग जो चिट चैट कर रहे हो ना, वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं पूछूंगा. ओके. सो हाउ मच ऑफ यू फेल्ट वेरी मच रिलैक्स्ड? दे कैन रेज देयर हैंड्स. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू, आई थिंक सो. हाँ. नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज टू यू. मैं कुछ जगह पर ले गया आपको. जैसे पहले आकाश में पक्षी बना दिया आपको. सेकंड में आपको फॉरेस्ट में ले गया, ग्रीनरी. तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आपको एकदम HD में दिखा होगा, पर काफ़ी हद तक आपको दिखा. आपकी स्क्रीन आज तक पहली बार चली है ना. आज तक भले कितनी बार चली हो नहीं चली मुझे पता नहीं, पर फर्स्ट टाइम यू वेंट एंड यू सॉ सच थिंग्स. तो किस किस को फील हुआ कि वो जैसे जैसे आपको दिखाया जा रहा था वैसे वैसे आप फील कर रहे थे? वो अपना हाथ ऊंचा करेंगे. दे वर एबल टू गो दैट. they were able to feel it. काफ़ी लोग हैं. I think so 60-70% of the audience. Now my third question is, how much of you felt the healing? कि वो healing जैसे हो रही है, हर एक सेल्स रिजुविनेट हो रहे हैं, मतलब नए हो रहे हैं, कुछ अलग हो रहे हैं. ओके. हाउ मच यू वेर ओके विद द लैंग्वेज? मतलब जो इंग्लिश बोली थी वो लगभग ठीक है. अब ये बताइए कि कितना टाइम लगा अपने को. पता आपको किसी को टाइम फील हुआ क्या? मुझे नहीं लगता हुआ किसी को. बट इट वेंट अराउंड 15 minutes. बट आई थिंक सो ऑल ऑफ यू फेल्ट 2 or 3 minutes. तो मेडिटेशन इज टाइमलेस. कि जहां पर टाइम का पता न चले वो क्या है? मेडिटेशन. जहां आपको पता चले कि कई बार मेडिटेशन ऐसा होता है कि 1 मिनट भी लगता है जैसे 1 घंटा. कब पूरा करे भाई मेडिटेशन? पर आज आपको ऐसा फीलिंग नहीं आए. तो सबसे बड़ी बात है कि मेडिटेशन टाइमलेस होता है. और ये जो मेडिटेशन है ये हमको रोज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए. कौन कौन मानता है करना चाहिए? मैं ये तो नहीं बोलता हूं कि आप 15-20 मिनट्स करो, बट एटलीस्ट 5 मिनट्स. कितने मिनट्स? 5 मिनट्स. तो वी विल बी टेकिंग अ स्मॉल रिजोल्यूशन. आर यू रेडी फॉर दैट? ओके. तो आप दोनों हाथ साथ में जोड़ सकते हैं
और मेरे साथ दोहराएंगे। हम संकल्प करते हैं कि प्रतिदिन 5 मिनट का मेडिटेशन 1 साल तक करेंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात कि ये मेडिटेशन में एक ट्यून बजी थी। तो ट्यून कौन सी थी पता है आपको? ज़ेन मेडिटेशन, ZEN। इसकी स्पेशलिटी क्या है? जैसे कितना सिंपल मेडिटेशन था ये। हमने क्या किया, खुद को रिलैक्स करते गए। ये तो आप खुद भी कर सकते हो कहीं पर भी बैठे बैठे। रिलैक्स करते करते फिर क्या बना दिया आपको? फ्लाइंग इन द स्काई, स्काई इज द लिमिट। तो स्काई में चले गए अपने। अब कितने कितने लोगों को नींद की प्रॉब्लम है नहीं है? नींद ज़्यादा आती है कम आती है? ज़्यादा आती है। अरे वाह, बहुत सुखी लोग हैं आप लोग। तो कहना पड़ेगा हमको आपसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नींद कम आती है। रात को क्या चालू हो जाता है? सोने तो चाहते हैं पर 1-1, 2-2 घंटा तक नींद नहीं आती है। फिर हमारी क्या चालू हो जाती है? या तो नेट सीरीज चालू हो जाती है या इधर उधर की कोई चीज़ें चालू हो जाती है। तो हमको क्या करना है कि आलतू फालतू चीज़ों में नहीं लगना है। क्या करना है हमको हमारी सीरीज बनानी है, अलग सीरीज, स्पेशल सीरीज। तो आपको क्या करना है पता? जैसे मैं आज आपको कहाँ ले गया? फॉरेस्ट ले गया। आप और कहीं पर भी जा सकते हो। यू कैन गो फॉर ट्रैकिंग इन द माउंटेन्स। फिर और वाटरफॉल में भी जा सकते हो। तो जो जो डेस्टिनेशन देखा है आपने वहाँ जा सकते हो, नहीं जा सकते हो? कोई टिकट लगेगी क्या? कोई पैसा, कोई रिसोर्सेज, कोई टाइम, कुछ नहीं। नींद में ट्रैकिंग कर रहे हैं, नींद में आउटिंग कर रहे हैं, नींद में हैंग आउट कर रहे हैं। जो दोस्तों को ले जाना वो दोस्तों को ले जाओ रहा, कोई मना ही है। तो इसको कहते हैं हम वर्ल्ड टूर मेडिटेशन। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड टूर मेडिटेशन। वर्ल्ड के कोई भी कोने में जाओ, उड़ो और घूम कर के आ जाओ। कोई बोलने वाला है क्या? नहीं। फिर ऑटोमेटिक सवेरे कोई उठा देगा आपको, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उधर जाके सो जाओ आप। तो ये मेडिटेशन आपको करना है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑटो पायलट मेडिटेशन। मैंने आपके अंदर इंस्टॉल कर दिया है, बहुत सिंपल है, आपको बता दिया तरीका। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑटो पायलट मेडिटेशन। एंड लास्ट फॉर डीप ब्रीदिंग। हमारी ब्रीदिंग स्मॉल होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए? आप देखें कि जिसकी ब्रीदिंग बड़ी होती है उसकी एज कैसी होती है? बड़ी होती है। और जिसकी ब्रीदिंग छोटी होती है वो एज छोटी। तो आप देख लीजिए टॉर्टोइज, एलिफेंट, उनकी ब्रीदिंग कैसी होती है? बड़ी होती है। तो उनका एज भी कैसा होता है? टॉर्टोइज का 200, 300 साल। और एलिफेंट भी इतना मोटा होने के बावजूद भी 90 साल तक जी जाता है। और वही कुत्ता, बिल्ली, लायन, लेपर्ड, ये जितने भी है, इनकी छोटी होती है बड़ी होती है? छोटी होती है। इसलिए उनकी एज भी कैसी होती है? छोटी। आपको पता है कि सबसे ज्यादा एज पूरे वर्ल्ड में किसकी है? जापान। आप लोगों ने एक बुक का नाम भी सुना होगा, इकिगाई। अब उन्होंने जापानीज का एक स्पेशल, आपको मैं सीक्रेट बताता हूं, उनकी एज लंबी क्यों होती है? सबसे बड़ा रीजन यही है कि उनके यहाँ पर डीप ब्रीदिंग का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और उसी का नाम वो लोग देते हैं ज़ेन मेडिटेशन, ZEN। तो जापान में बहुत फेमस और बहुत प्रसिद्ध है। खाना भी एक चीज़ है, बहुत सारी चीज़ है, पर उसमें एक जो सबसे मेजर कॉन्सेप्ट है, और वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? डीप ब्रीदिंग। इसलिए उनकी एज भी लंबी है। तो हमने आज कुछ पॉइंट को जानने की कोशिश की। एक बार हम रिपीट करेंगे। ई पैड क्या था? ई पैड। तो सबसे पहला पॉइंट जो दिया था हमने क्या था? ई फॉर एक्सपेक्टेशन। क्या है? एक्सपेक्टेशन। तो मेरी आवाज से आपकी आवाज छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आप इतने सारे, मैं अकेला हूं। तो ई फॉर, फिर पी प्रेशर कुकर, फिर सेकंड पी पोटेंशियल, थर्ड पी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फिर ए ऑटो पायलट मेडिटेशन, एंड लास्ट फॉर डी डीप ब्रीदिंग। अब मैं उल्टा पुल्टा पूछूंगा, तैयार? डी, ए, ई, पी, सेकंड पी, थर्ड पी। अरे वाह, आपको अच्छी प्रैक्टिस करा दी। अभी ये वर्सेस ये, तैयार? ई,
P, second P, third P, A, D, फिर E, A, ट्रिपल P, वापस ओ मैडम। तो मैं मानता हूँ कि आपने अच्छे से जान लिया है, समझ लिया है। तो ये चीज़ अगर अच्छी लगी है तो अपने तक रखना चाहिए ना, स्प्रेड करनी चाहिए। कैसे स्प्रेड करनी चाहिए? बस वो वीडियो बन गया, वायरल करो उसको, खत्म बात। तो कैसे करनी चाहिए? आपको शेयरिंग करनी है। क्या करनी है? टू गेट द ओनरशिप ऑफ दिस थिंग, आपके दिमाग में उतरे तो उसके लिए क्या करना है? उसको आपको क्या करना है? दूसरों को शेयर करना है। तो कम से कम 3 दिन में कितने लोगों को शेयर करना है आप लोगों को? 3 लोगों को। कितने लोगों को? 3 लोगों को। पर मेरा जितना लंबा मत लेना, भाग जाएंगे नहीं तो शॉर्ट एंड स्वीट में बताने की कोशिश करनी है। विद इन 5 मिनट्स में आपको लेने की कोशिश करनी है। तो एक हम छोटा सा एक प्रयोग करेंगे, ब्रीदिंग पे थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है? हम नॉर्मल 1 मिनट में, मैं आपको देखता हूँ कि 1 मिनट में आपकी कितनी ब्रीदिंग होती देखते हैं। हमारे मुनीश्री बताते हैं। तो हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो नॉर्मल अगर देखने जाए ना तो 1 मिनट में 20 ब्रीदिंग होती है। हमको लाना कितना है? हमको कोशिश करना है 10 तक लाना है। कितने तक लाना है? 0 नहीं करना है, 0 तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 10 तक लाना है। तो ये एक कोशिश आप लोगों की भी रहेगी। अब हम मुनीश्री को भी सुनना चाहेंगे, तो मेरा विनम्र निवेदन मुनीश्री। प्रसन्नात्मा भीक्षु नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज युग प्रधान गुरुदेव के चरणों में भाव भरा नमन। ऊर्जा, उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित ऑल द एनलाइटनिंग, enthusiastic and empowered youth present here. Today, we would love to have a deep discussion on practical upgradation of life. आप में से कितने लोग हैं जो हमेशा खुश रहते हैं? कितने लोग हैं जो हमेशा खुश रहते हैं? और कौन कौन है जो खुश होना चाहता है? आप थोड़ा ऊपर करो। वेरी गुड, वेरी नाइस। इस छोटी सी एक्टिविटी से हमें समझ में आ रहा है कि हम खुश कितने हैं और खुश होना चाहते कितना। तो सब लोग खुश होना चाहते हैं, पर जरूर नहीं कि वो हर समय खुश रहते हैं, राइट और नॉट? तो खुश रहते हैं कभी कभी, पर चाहते हैं सभी कि हम हर हाल में रहें खुशहाल, हर हाल में रहें खुशहाल। तो वो खुशियां अंदर में कैसे आएगी? तो लेट्स डिस्कवर द ट्रू हैप्पीनेस। ट्रू हैप्पीनेस के लिए हमें अपनी लाइफ को क्या करना है? गियर अप करना है, अपने आप को तैयार करना है फ्रॉम ऑल द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, टर्बुलेंस इन लाइफ। लेट्स ब्रिंग द हैप्पीनेस फॉर एवर। एक ऐसा बॉन्ड हम क्रिएट कर पाए अपनी लाइफ के लिए, तो कितना आनंद होगा। उसके लिए 3 सूत्र हैं, 3D। डी स्ट्रेस, डी टॉक्स, टू डिस्कवर। टू डिस्कवर द ट्रू हैप्पीनेस वी नीड टू डी स्ट्रेस आवरसेल्व्स। आप में कितने लोग स्ट्रेस में रहते हैं? कितने लोग एग्जाम को लेकर, कभी मम्मी की डांट को लेकर, कभी कोई रोक टोक को लेकर, और स्पेशली जब मोबाइल फोन बंद हो जाता, कितने लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, राइट और नॉट? So should our smile be dependent on the mobile? Should it be? Is it? Yes, it is. But it should not be. Should our happiness be dependent
on the other's behavior, but it is yes or not? बस इस चीज को हमें बदलना है। हमारी हैप्पीनेस किसी चीज पर, किसी व्यक्ति पर, किसी शब्द पर डिपेंडेंट न हो। So we all want the journey of true happiness, independent happiness. So our happiness must not be dependent on any person, on anything, but it should be everywhere with everything. तो कैसे हम हर चीज, हर स्थिति में खुश रह पाए, उसके लिए आज हम एक छोटी सी चर्चा करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। जो बच्चे आज यहाँ पीछे खड़े हैं उनके लिए आगे की सीट रिजर्व की गई है। दे डिजर्व द फ्रंट सीट्स, दे कैन टेक द प्लेस। तो एक छोटी सी स्टोरी के साथ अपने क्वेश्चन को मैं सामने रखना चाहता हूं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देखना है कि आप में से कौन उसे दे सकता है। क्या सब लोग तैयार हैं? इज एवरीबडी रेडी? ये क्वेश्चन है, एक बुढ़िया थी। बुढ़िया बहुत बढ़िया काम करती थी, बहुत मेहनत करती थी। एक दिन रात के समय उसकी सुई गिर जाती है। क्या गिर जाता है? सुई। वो नीडल गिर गए। अंधेरा था कमरे में, वहाँ लाइट्स नहीं थी और वहाँ पे कोई मौका नहीं था। जैसे हमारे यहाँ पे जो टीचर्स बैठे, आपका नाम क्या है? आपका नाम? डॉक्टर अदिति जी। पर उस समय अदिति नहीं थी, आदित्य भी नहीं था, रात का अंधेरा था। तो वो उस कॉटेज के अंदर जिसमें वो बुढ़िया बैठी थी, वो सिलाई का कुछ काम कर रही थी और अचानक उसकी नीडल गिर गई। नीडल विदाउट द थ्रेड, इज इट इजी टू फाइंड इन द डार्क? तो उसने सुना था कि कुछ भी खोजना तो प्रकाश में खोजना चाहिए। उसके घर में लाइट्स नहीं थी, बाहर स्ट्रीट लाइट्स ऑन थी। वो बाहर जाती है स्ट्रीट लाइट पर और वो नीडल को खोजना शुरू कर देती है। उस प्रकाश के अंदर वो ढूंढती। कितने टाइम में, आपको क्या लगता है कितने टाइम में उस नीडल को वो खोज पाएगी? 1 घंटा या 6 घंटा? अरे वो बहुत मेहनत कर रही है। आप बता सकते हैं कितना टाइम लगेगा हमें? पर क्या 6 घंटे, क्या 24 घंटे में भी जहां पे वो स्ट्रीट लाइट है, उस जोन में अगर वो ढूंढेगी तो क्या वो पहुंचेगी वहां तक? नीडल कहाँ गिरी है? खोज कहाँ रही है? तो क्या मिलेगी उसे? वैसे ही बंधुओं, आप कितने समझदार लोग, यू नो वेरी वेल। अगर आप उसकी जगह पर होते तो आप क्या करते? नीडल कहाँ ढूंढते? लाइट में या कमरे में? तो कमरे में तो अंधेरा है और लाइट्स वहां है नहीं, कनेक्शन ही नहीं है। तो क्या करते हैं? शायद कुछ समय का इंतजार करते। वो आदित्य आए, प्रकाश करे, तब तक का या तो इंतजार या हाथ के स्पर्श से, अपने मोबाइल की लाइट से या टॉर्च से उसे ढूंढा जा सकता है। पर खोजना वहीं होगा जहां वो प्रॉब्लम आ रही है, जहां से। अगर हम बाहर खोजेंगे तो कभी नहीं पहुंचेंगे, भीतर खोजेंगे तभी पहुंचेंगे। तो खोज कहाँ करनी होगी? भीतर में करनी होगी। तो आज हमारी लाइफ में जो स्ट्रेस है, टॉक्सिन है, वो बाहर है या भीतर? हम उसका सब इलाज कहाँ ढूंढ रहे हैं? कितने ज्ञानी हैं आप लोग, यू नो वेरी वेल। वी हैव डिस्कवर्ड योर ट्रू प्रॉब्लम, द सॉल्यूशन लाइज इन यू, विद इन यू। सो एवरीथिंग, द होल जर्नी of self-upgrade starts with you in within you। तो हमें अगर उसका सॉल्यूशन करना है तो बाहर के आंसर से वो सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। उसका जवाब हमें ढूंढना होगा अपने भीतर। अपने भीतर की यात्रा करके ही हम उस सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। आप सभी अपनी लाइफ की जर्नी में प्रयास करें कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए उसकी खोज बाहर न करें, बल्कि कहाँ करें? भीतर करें। भीतर जाना, ये जर्नी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोग हैं जो खुद के साथ समय बिताते हैं? वेरी गुड। कितने लोग दोस्तों के साथ समय बिताते हैं? कितने लोग फैमिली के साथ समय बिताते हैं?
वेरी गुड। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंटरव्यू आप में से कुछ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट से होने वाला है। आप सब लोग रेडी हैं? यहाँ पे बैठे हुए में से कितने लोग स्टूडेंट हैं? आपको पता हो कि लाइफ इज ऑल अबाउट अ लर्निंग। जो लर्न कर रहा है वो स्टूडेंट है। तो कौन कौन लाइफ से लर्न करने की कोशिश निरंतर कर रहा है वो स्टूडेंट है। कौन कौन स्टूडेंट है? अच्छा, कौन कौन स्टूडेंट नहीं है? जो लर्निंग रोक देता है वो मानो लिविंग रोक देता है। हु ऑल आर लिविंग नीड टू बी ऑन द लर्निंग मोड, यस और नॉट? अर्निंग मोड पर भी होंगे पर लर्निंग मोड छूटना नहीं चाहिए। हम जब तक खुलेंगे नहीं हम खिलेंगे नहीं। हमें खुलना एक सच्चे ज्ञान के लिए, एक नए ज्ञान के लिए, और हमारी जीवन की दिशा वो बन जाए कि हर दिन हम कुछ नया सीख रहे हैं। जीत कर भी और सीख कर भी हम हमेशा सीखते हैं। तो मैं आप में से कुछ स्पेशल डायनामिक यंगस्टर से 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं ग्रीन। आपका नाम? एक बार खड़े हो सकते हैं? एक बार चलेगा? प्राजक्ता जी, आपको अपनी एक फ्रेंड लिस्ट शेयर करनी है। आपके पास केवल 15 सेकंड का टाइम है। आपको अपने फ्रेंड्स के नाम बताने, ठीक है, जो आपके एकदम खास हैं। जितने ज़्यादा बताएं अच्छी बात है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। करीब 7 मित्रों के नाम इन्होंने बताए। इनके लिए एक। तो जैसे आप ताली बजाते हैं, हमारा एक स्पेशल तरीका है ग्रीट करने का। हम कहते हैं ओम अरहम। क्या कहते हैं? सो इट्स अ न्यू वे, एन इनोवेटिव वे टू ग्रीट एनीवन और एवरीवन। इज इट ओके? अब आप प्राजक्ता जी आप स्थान ले सकते हैं। अब हम पीछे के एक डायनामिक यंगस्टर को देखते हैं। यस, जिन्होंने ग्रीन ऐसा बैंड लगाया हुआ है। यस, जो पीछे देख रहे हैं वही ग्रीन कलर का स्ट्रिप है आपके पास है? वेरी गुड। आपका नाम क्या है? हाँ, आप बता सकते हैं। माइक दे देना। माइक हमारे तांदिल जी सुपरफास्ट सबको कनेक्ट करने वालों में है। तो आपको बताना है आपके जो नियर एंड डियर वंस। जस्ट शेयर अ लिस्ट ऑफ योर नियर एंड डियर वंस। यू हैव जस्ट 15 seconds. टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। आपने करीब 11 नाम लिए हैं। इनके लिए एक स्पेशल। तो ये 2 व्यक्तियों को हमने सुना 7, 11। अब तीसरे नंबर पर हम देखते हैं पिंक में है। हाँ, आपका नाम? हाँ, आपकी भावना बहुत अच्छी है। कितने लोग हैं जिनके प्रति आपकी भावना बहुत जुड़ी हुई है? उनका नाम आपको बोलना है, ठीक है? ये जस्ट 15 seconds. टाइम स्टार्ट्स नाउ। मम्मी पापा भाई फ्रेंड्स। नहीं, फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, कोई पर्टिकुलर फ्रेंड्स कोई नाम है उनके? अनुष्का, साक्षी, हंसा। ठीक है, टाइम अप। आपने करीब करीब 8 नाम लिए हैं। इनके लिए भी एक। वेरी गुड। और 4th में हमारे जो स्पेशल पीछे बैकग्राउंड वर्क कर रहे हैं, हमारे चश्मे के साथ रेड पिंक शर्ट है। यस, आपका नाम? मनोहर रेड्डी। मनोहर जी, आप रेडी हैं? आपके पास करीब 15 सेकंड है। आपको अपने जो एकदम खास जिगरी हैं, जिनके साथ आप कुछ भी शेयर कर पाते हैं, आप इजी फील टू कनेक्ट करते हैं, ऐसी एक लिस्ट आपको शेयर करनी है। आपका किस 15 सेकंड है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। साहिल पाटिल, अभिषेक कांबले, महेश परिहार, श्रीधर शर्मा, राजेंद्र सिंह, आस्था पंडित। ज़्यादा हो गया। टाइम अप। इन्होंने सुपरफास्ट गाड़ी दौड़ाई। इन्हें 6 नंबर मिले हैं। गाड़ी रुक गई। तो इनके लिए एक।
तो 7, 11, 6, 8, हाँ 8। और इसी क्रम में हाँ जो पीछे से 3rd नंबर पर है विद अ ग्रीन जैकेट, ब्लू जैकेट, आपका नाम क्या है? हाँ हाँ दिव्या जी। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनसे आप दिव्यता की फीलिंग शेयर करते हैं, मतलब यू फील गुड वाइब्स विथ? ऐसे एक लिस्ट आपको शेयर करनी है, आपके पास ठीक 15 सेकेंड है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। Myself, Bhagwan ji, I am very धार्मिक लगता है, and my friend Shreya. वेरी गुड। इनके लिए इन्होंने 3 नाम शेयर किए हैं। अब हम जानना चाहेंगे किसी से बेस्ट परफॉर्मर कौन था, आपको क्या लगता है? नंबर 1 कौन है? देखो, एक ने 6 नाम दिए, एक ने 8, एक ने 7, एक ने 11, एक ने 3। कौन है? तो सही जवाब है दिव्या जी का। दिव्या जी ने जो जवाब दिया है वो लाजवाब था। इनके लिए एक स्पेशल क्यों? काउंट में ये आगे थे, तो फिर भी इनका नाम लिया, सबसे लीस्ट इनका काउंट था, फिर भी इनका नाम सबने लिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंक्लूड किया माई सेल्फ एंड द सुपीरियर सेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ की जर्नी में हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन है? वो है स्वयं। जब साथ स्वयं का ना हो, किसी का साथ काम आता नहीं है। जब आप एग्जाम देते हो, आपके साथ कौन होता है जो आपको पूरी हेल्प करता है? कौन है? बाजू वाला या मोबाइल वाला या अंदर की पर्ची वाला? कौन हेल्प करता है? स्वयं। बाकी सारी चीजों में होती है नकल, पर जब हम खुद से जुड़ जाते हैं तो चलती है अपनी अकल। तो नकल से अकल बड़ी होती है। तो हम अपने आप से कितना प्रेम करते हैं, अपने आप से मैत्री कितनी करते हैं, सेल्फ के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, उससे हमारी लाइफ की डायरेक्शन और डिसीजन मेकिंग बहुत स्मूथ, ब्राइट और पावरफुल बन सकती है। इसको सुंदर तरीके से प्रभु महावीर ने कहा, पुरुषा तुममेव तुमं मित्तम किम बहिया मित्तमिच्छसि। वो कहते हैं कि तुम्हारा सच्चा मित्र तुम स्वयं हो, क्यों तुम बाहर मित्रों की खोज कर रहे हो? मित्र वह नहीं है जिसके लिए आपको बदलना पड़े। मित्र वह है जो आपके साथ जैसे आप हैं वैसा आपको स्वीकार करे। यू मेक अ मोल्ड इन योर सेल्फ बिकॉज यू फील इट गुड, बट इफ यू हैव टू मोल्ड योर सेल्फ फॉर अदर्स, इफ यू आर इन द फिट इन कल्चर, यू विल बी इन द कंटिन्यूम ऑफ स्ट्रेस। अगर लाइफ में हमें डी स्ट्रेस होना है तो बी यू, बिलीव इन योर सेल्फ, बी यू एंड बिलीव इन योर सेल्फ। एक छोटी सी स्टोरी से हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ये बी यू का मतलब क्या है यहां पर? इस स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आप में से किसी भी जीनियस एक्सपर्ट से पूछा जा सकता है। क्या सब लोग तैयार हैं उसके लिए? आप में कितने लोग जाग रहे हैं? हाथ ऊपर करेंगे। ये कोई पूछने की बात है, जाग सब रहे हैं, पर ये एक शायद एक अवेयरनेस की एक्टिविटी थी जिसे हमें जानना था कि रियल में आप इतने जाग रहे हैं कि कई लोग आंख खुली रख के भी सो जाते हैं, यानी विचारों में कहीं खो जाते हैं, पर आप अंदर से जाग रहे हैं, भीतर की शक्तियों के साथ जुड़ रहे हैं। तो एक स्पेशल क्वेश्चन आप तक आ रहा है, इसको ध्यान से सुनेंगे, उसका जवाब आप में से किसी से भी पूछा जा सकता है। इज एवरीबडी रेडी फॉर दैट? आर यू श्योर? एक बार की बात, एक कौवे के मन में आया कि मैं बहुत बेकार हूं, आई एम ब्लैक, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, कोई मुझे प्लीज नहीं करता, सब लोग मुझे टीज करते हैं, मुझे भगाते हैं, मुझे पर पत्थर फेंकते हैं, मुझे बोलते काऊ काऊ करने वाला आ गया, भगाओ उसको, मेरी कोई वैल्यू नहीं है लाइफ, मैं सुंदर नहीं हूं, मुझे चेंज चाहिए, आई वॉन्ट अ चेंज इन माई लाइफ। तो वो उड़ते उड़ते एक समुद्र किनारे बैठा था, डिप्रेशन में था, लाइफ में डिसअपॉइंटेड था। उतने में उसे योगी दिखे, संत दिखे, और वो संत को देखते ही उसे एकदम कनेक्शन हो गया।
वो कनेक्शन इतना गहरा हो गया कि उसकी पास्ट लाइफ की जर्नी से वो जुड़ गया। उस कौवे के पहले की लाइफ में वह भी एक मानव था। उसे मनुष्य की भाषा याद आ गई। अब वो मनुष्य की भाषा में संत से बात करता है और कहता है कि आई एम फेड अप ऑफ माई लाइफ, आई वॉन्ट टू फ्रीडम। मैं फेड अप हुआ, मुझे फ्रीडम होना है, मुझे चेंज चाहिए, आई वॉन्ट अ चेंज इन माई लाइफ। कभी कभी आप में से किसी को फीलिंग आती है कि आई वॉन्ट अ चेंज इन माई लाइफ? यस और नो? हम अपने आप को बदलना चाहते हैं। उसके मन में भी ऐसा ही कुछ आ रहा है। उस संत को कहा, और संतों के बाद एक विशेष शक्ति थी, उन्होंने उसे ब्लेस किया, एक वरदान दिया, एक बूंद दिया कि यस तुम्हें क्या बनना है बताइए, हम तुम्हें वरदान देंगे। तो उसने कहा कि जो डोव होता है, डोव तालाब में घूमता है, एकदम वाइट एंड वाइट होता है, फ्यूचर उसका ब्राइट होता है। मुझे भी तो वैसा ही बनना है, मैं काला काला हूँ, बेकार है, मुझे वाइट एंड वाइट बनना है, मुझे डोव बना दीजिए। तो उसे बोला पहले आप एक डोव का रिव्यू ले लीजिए, उसकी लाइफ कैसी लग रही है, उसका रिव्यू लेकर फिर आप आइए, क्योंकि मैं एक ही बार ब्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, वो डोव के पास जाते हैं, डोव का इंटरव्यू लिया जाता है। डोव को पूछते हैं भैया, डोव भैया आप तो बहुत खुश रहते हो, आप एकदम वाइट एंड वाइट रहते हो, का फ्यूचर हमेशा ब्राइट रहता है, माइंड हमेशा लाइट रहता है, हमें भी आपके जैसा बनना है। वो बोले मुझे वरदान मिल रहा है और मुझे कहा कि आपका रिव्यू लूँ फिर मैं बनूँ, तो बताइए आपकी लाइफ कितनी अच्छी आनंदित है ना। बोले नहीं भाई, ओवर स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस क्या, हमारी लाइफ में टॉक्सिन्स आ गए हैं। इस नदी तालाब में जब हम घूमते हैं वहाँ प्लास्टिक और इतना सब कचरा, इतनी गंदगी, इतनी पोल्यूशन, इतनी प्रॉब्लम हो गई है, हमारा जीवन बेकार हो गया। और हम तो उड़ के जा भी नहीं सकते, हम यहीं घूमते हैं नदी में, तालाब में, और इतना गंदा पानी है, क्या करूँ, परेशान हो मैं तो लाइफ से। अगर चेंज मिल रहा है तो मुझे भी चाहिए, वो संत के दर्शन मुझे भी करने, मुझे भी लाइफ में चेंज चाहिए। अब दोनों मिलकर संत के पास पहुंचते हैं कि भाई ये तो हम दोनों ही खुश नहीं हैं। फिर दोनों मीटिंग करते हैं और सेटिंग करते हैं कि चेंज। बोले क्या चाहिए, क्या बनना है बताओ? तो मुझे तो ग्रीन ग्रीन बनना है, ग्रीन ग्रीन लाइफ एवर ग्रीन, मुझे पैरेट बनना है, पैरेट, ग्रीन पैरेट होता है को सब लोग चाहते हैं, तो मुझे भी पैरेट बनना है। तो दोनों मिलकर कहते हैं, तो संत ने वही कहा कि तुम पैरेट का रिव्यू ले लीजिए पहले, आपको लगे इसकी लाइफ बेटर है, उसका एक्सपीरियंस ले लीजिए, फिर मैं एक ही बार ब्लेस करूँगा। बोले ठीक है। दोनों मिलके पोपट भैया के पास जाते हैं। पोपट, वो बोले काय का पोपट, जीवन हो गया पूरा चौपट, कोई लाइफ में मज़ा नहीं है, मैं लाइफ में बड़ा स्ट्रेस्ड हूँ, बड़ा परेशान हूँ। बोले क्यों, क्या हुआ, आप इतने सुंदर दिखते हैं। बोले वही तो प्रॉब्लम हो रही है। बोले लोग मुझे पिंजरे में बांध लेते हैं, मुझसे बुलवाते कि पोपट को ऐसा बोल, वैसा बोल, कैसा बोल, मेरी तो कोई लाइफ ही नहीं है, मैं तो बंदी हूँ, बंदिश में जीता हूँ, मेरी लाइफ में कोई मज़ा नहीं है, लाइफ एक सज़ा बन गई है। बोले अच्छा ये बात है। वो बोले नहीं, हम संत के पास गए, हमको वरदान मिल रहा है चेंज का। तो बोले चेंज तो मेरे को भी चाहिए। तो तीनों ने मीटिंग की, बोले चेंज क्या होना चाहिए, क्या बढ़िया है। तो उन्होंने बोला मोर, मोर दिल मांगे, और हमें भी बनना क्या है। बोले ये पूरा नेशनल बर्ड है, इतना सुंदर, उसकी फेदर्स, उसका रूप, उसका रंग एक अलग ही लेवल का है। वो नाचता है सबको मज़ा आता है, वो गाता है सबको आनंद आता है, वो दिखता है इतना बढ़िया है, सब लोग आके उसका सेल्फी खींचते हैं, फोटोग्राफ होते हैं, हर जगह उसकी एक बोलबाला है। तो हमें तो क्या बनना है, मोर बनना है। तो तीनों के तीनों संत के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमें तो पीकॉक बनना है। संत वही बात कहते हैं कि तुम जाके एक बार इंटरव्यू रिव्यू ले लो, और रिव्यू में कितने स्टार मिलते हो पहले देख लीजिए। आपको लगता है कि 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, 5 स्टार मिल जाए हम आपको ब्लेस कर देंगे। अब वो मोर के पास पहुंचते हैं और मोर कहते हैं मोर भैया आप कितने सुंदर, कितनी एनर्जी आपके अंदर, कितने कलरफुल हो आप, हमें भी आपके जैसा बनना है। बोले कैसे बनोगे। बोले संत हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा आशीर्वाद दे कि हमारा रूप बदल जाएगा। वी विल ट्रांसफॉर्म एंड वी विल लव टू हैव अ फॉर्म लाइक यू, बिकॉज यू लिव इन द फुल फॉर्म, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी लाइक यू। अब मोर क्या कहेगा, आपको क्या लगता है? आप एक समझदार व्यक्ति कोई बताएगा। यस ब्लू, आपका नाम? वैष्णवी जी आप बताइए, आपको क्या लगता है?
कि मोर क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि we have to change ourselves first. We Then need- hoping for others. वी नीड टू चेंज आवर सेल्फ फर्स्ट। तो इन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया वैष्णवी जी ने। इनके लिए भी एक वेरी गुड। ठीक है वैष्णवी जी। इसी क्रम में हम पीछे एक डायनामिक यंगस्टर को सुनना चाहेंगे जो पीछे पीछे सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट रो में है। हाँ, जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है, कोई है ऐसा? मास्क मैन कौन है? हाँ, मास्क वुमेन। हाँ, जो एकदम लास्ट रो में है, मास्क वाले, जिन्होंने अभी मास्क हटाया वो। जब टास्क आता है तो मास्क हट जाता है। आपका नाम? हाँ जी, आप थोड़ा सा इधर इस तरफ आ सकते हैं? थोड़ा चेंज जरूरी है लाइफ में। हाँ जी, देविका। हाँ, आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? मोर ने चेंज करने का, मोर के जब पूछने जा रहे हैं कि उनकी लाइफ कैसी है, वो अपना रिव्यू क्या देगा? वेरी गुड। ठीक है देविका जी, आप ये माइक उन्हें शेयर कर सकते हैं वापस, जिनके हाथ में है ना। हाँ, आप बताइए, आपका नाम? दीक्षा। दीक्षा जी, आप बताइए इससे क्या शिक्षा मिलती है? यस, मुझे लगता है मोर के भी मतलब उसके खुद के प्रॉब्लम्स होंगे कि उसके पंख भी लोग निकाल के लेके जाते हैं। वेरी गुड। इन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। इनके लिए भी एक। अब हम चलते हैं इधर आगे की तरफ, ये राइट तरफ। यस, जो फर्स्ट है रेड में जो बैच लगा हुआ है, पर्पल। यस, और आगे और आगे आगे और आगे आगे बढ़ना है। यस, और आगे और आगे। हाँ, आपका नाम? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा जी। दीक्षा हो गई, अब आपके उत्तर की प्रतीक्षा है। आपको क्या लगता है कि इससे मैसेज क्या मिला होगा? जैसे इन्होंने जवाब दिया एकदम सही है कि मोर भी अपनी लाइफ से बोर था। उसने बोला मेरे पंख निकाल लेते हैं, मुझे खींचते हैं, मुझे पकड़ते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, तो मेरी लाइफ भी बेकार है। एंड रिजल्ट में क्या स्टोरी का मॉरल होगा? ये प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती है, तो हमें अपने आप से सॉल्यूशंस निकालना होगा हैप्पी रहने। वेरी गुड। इनके लिए भी एक बहुत सुंदर। आप अपना स्थान ले सकते हैं। दीक्षा जी, आप भी अपना स्थान ले सकते हैं। तो इम्पोर्टेंटली हमने इस छोटी सी स्टोरी में देखा कि सभी लोग चेंज कर रहे थे। एंड नोट पर कौवा और से जुड़े हुए वो चारों पक्षी संत के पास पहुंचते हैं और संत कहते हैं कि लाइफ किसकी अच्छी है। तो मोर खड़ा होकर कहता है कि लाइफ कैसी होनी चाहिए? तो कौवे जैसी होनी चाहिए। लाइफ बेस्ट किसकी है? कौवे। क्योंकि मेरी सुंदरता मेरी एक प्रॉब्लम है, पर ये जैसा है नेचुरल है, इसे कोई पकड़ता नहीं है, इसे कोई बांधता नहीं है। एट द एंड स्टोरी का मॉरल निकलता है बी यू, वट एवर यू आर, स्टॉप बिकमिंग, स्टार्ट बीइंग। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड फॉर अदर्स, वी मेक सम रोल मॉडल्स, हमें वैसा बनना है, हमें ऐसा बनना है, पर हम ये भूल जाते हैं हम जैसे हैं कितने सुंदर, कितने अच्छे। वी डोंट नीड टू चेंज आवरसेल्फ ऑलवेज, वी नीड टू बी आवरसेल्फ। और जब आप अपने अंदर रहने लग जाते हो, आपके अंदर आता है कॉन्फिडेंस, आपके अंदर आती है क्लैरिटी। आप फिट इन कल्चर में नहीं रहते हो, आप जहाँ रहते हो वहीं फिटनेस में रहते हो। तो फिट इन कल्चर बहुत अच्छा नहीं है। आप मेरे कितने लोग फेस करते हैं कि पीयर प्रेशर, फिट इन कल्चर, आपको अपने आप को कॉन्स्टेंटली बदलने की इच्छा रहती है, अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप, अपने उस लेवल को सेट करने के लिए। कितने लोग कांस्टेंट चेंज के स्ट्रेस से गुजरते रहते हैं? कितने लोग हैं? और कितने लोग हैं उन्हें लगता है कि जैसे वो है वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं। ये फीलिंग कितने लोगों के अंदर रहती है? ये फीलिंग किसके अंदर रहनी चाहिए? हम सब के अंदर रहनी चाहिए। आज से
हम अपने आप से लव करना शुरू करें। स्टार्ट लविंग आवरसेल्फ, बीइंग आवरसेल्फ, फीलिंग आवरसेल्फ, living with ourselves. Just share a piece of time and experience your inner talents and let's discover ourselves. क्योंकि डी स्ट्रेस और डिटॉक्स का इलाज क्या है? डिस्कवर करना। तो हम अपने आप को डिस्कवर कर सकेंगे। When we will discover ourselves, we will actually make a gear up. तो अपने आप को गियर अप करना है। Tear up your fears, gear up yourself for the best of you to come. कितने लोगों को लगता है कि वो अपना बेस्ट अगर देंगे तो दुनिया में हर चीज में वो कामयाब हो सकते हैं? ये पोटेंशियल कितने लोगों के अंदर है? कितने अंदर के अल्टीमेट पोटेंशियल, इनफाइनाइट पोटेंशियल कितने लोगों में आप में से? लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट टू एक्सेल योरसेल्फ। तो आज से अपने आप को कहना है यस, यू हैव डन अ गुड जॉब। जैसे आप एक असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं, अपनी एक एग्जाम कंप्लीट करते हैं, रिजल्ट टाइम से आएगा तो आपको एग्जाम के साथ अपने आप को पैट करना है, अपने आप को कहना है यस, यू हैव रिटन वंडरफुली। जो लिखा है किस्मत टीचर की, हिम्मत मेरी। किस्मत टीचर के हाथ, हिम्मत मेरे साथ। तो जब अपनी हिम्मत की कीमत आप करने लग जाएंगे, आपकी किस्मत अपने आप खुलने लग जाएगी। हिम्मत चाहिए, सबसे बड़ी कीमत किस्मत की नहीं, हिम्मत की है, मेहनत की है। जब आप करेंगे मेहनत और लगाएंगे अपनी शिद्दत तो खिलेगी आपकी भी किस्मत, क्योंकि वो है शक्ति है आपकी अपनी हिम्मत। तो अपनी हिम्मत पर विश्वास करना हम शुरू करें तो अपनी लाइफ में हम एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अवश्य ला सकते हैं। तो आज के सेशन में कितने लोगों को रियल में आनंद आया है और कितने लोगों को ओवरडोज हो गया? रियल में आनंद आया। हम एक छोटी सी एक्टिविटी करने जा रहे हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, गर्दन और कमर को सीधी करेंगे, शरीर स्थिर, मन शांत, दोनों हाथ जुड़े हुए। धीमे धीमे श्वास लें, धीमे धीमे श्वास छोड़ें। छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करेंगे एक टाइम। पुनः एक बार अब पूरी यूनिवर्सल एनर्जी को अपने आप कनेक्ट करते हुए वापस श्वास लेंगे, एक बार ओम करेंगे फुल यूनिवर्सल पॉजिटिव एनर्जी के साथ। अब दोनों हाथ जुड़े रहें, चेहरे खिले रहें। अपने भीतर की आंखों से फील करें अपने भीतर एक पॉजिटिव वाइब्रेंट एनर्जी को। फील करें यू आर द बेस्ट इन योर सेल्फ। लेट्स गिव आवर बेस्ट टू बी द बेस्ट। लेट्स गिव आवर बेस्ट टू बी द बेस्ट। लेट्स गिव आवर बेस्ट टू बी द बेस्ट। अपने बेस्ट वर्जन बनने के लिए अपने दोनों हाथों को जुड़े रखें और फील करें आई एम गिविंग माई बेस्ट फॉर गिविंग एवरी वन। आई एम गिविंग माई बेस्ट फॉर गिविंग एवरी वन। आई एम गिविंग माई बेस्ट एंड फॉर गिविंग एवरी वन। सबको क्षमा कर रहे हैं। फील करिए आप सबको क्षमा का प्रयोग कर रहे हैं। यू आर फॉर गिविंग एवरी वन। एवरीवन, सभी को आप क्षमा कर रहे हैं। फील करें अपने भीतर से अपने भीतर उस क्षमा का प्रयोग करें। फील करें आप सबको माफ कर रहे हैं। उन सभी को जिन्होंने कुछ बिटर बिहेवियर किया,
उसे भी आप माफ कर रहे हैं। जिसने आपसे झगड़ा किया था उसे भी आप क्षमा कर रहे हैं। अपने मम्मी, अपने पापा, अपने भाई, अपनी बहन जिनसे झगड़ा हुआ था, मम्मी पापा जिन्होंने कभी डांटा था, वो टीचर जिसे नंबर काटे थे, उसे भी आप क्षमा कर। वो मास्टर जिसने लेट होने पर आपको पनिश किया था, उसे भी आप क्षमा कर। जिन्होंने एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे थे, उन्हें भी आप क्षमा कर। जिन्होंने कोर्स करिकुलम में आपको बॉन्ड कर दिया, उन्हें भी आप क्षमा कर। जिन लोगों ने आपको आने में लेट किया, उन्हें भी आप क्षमा कर रहे हैं। जिन्होंने ट्रैफिक में ज़्यादा हॉर्न बजाया, उन्हें भी आप क्षमा कर रहे हैं। जिन्होंने आगे बैठकर आपको थोड़ी देर खड़ा रख दिया, उन्हें भी आप क्षमा कर रहे हैं। जिन्होंने आपको समय पर फ़ोन रिंग नहीं बजाई, उन्हें भी आप क्षमा कर रहे हैं। जिन्होंने आपके सोशल मीडिया के वीडियोस को लाइक शेयर नहीं किया, उन्हें भी आप क्षमा कर रहे हैं। जिन्होंने आपकी इच्छा को नहीं समझा, नहीं माना, आपकी मनमानी का काम नहीं किया, उसे भी आप क्षमा कर रहे हैं। जिन्होंने आपको चीटिंग में हेल्प नहीं किया, उन्हें भी आप क्षमा कर रहे हैं। जिन्होंने आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया, उन्हें भी आप क्षमा कर रहे हैं। जिन्होंने आपको डिसिप्लिन किया आपके बेटरमेंट के लिए, पर आपको बिटर लगा, उन्हें भी आप क्षमा कर रहे हैं। उन सबको क्षमा का प्रयोग कर रहे हैं। और अब आप अपने खास मित्र, जो आपके एकदम करीबी है, जो आप स्वयं हैं, उसको भी क्षमा करें। Forgive yourself with all the misconceptions, all the misperceptions in your life, all the mistakes committed in your life. Just forgive them. आपकी मेहनत की थोड़ी सी कमी, जिससे आप बेटर परफॉर्म, बेटर रिजल्ट नहीं ला पाए, उस बिटर सेल्फ को भी क्षमा करें। जो आपको बेटर सेल्फ बनने से रोक रहा था, उस बिटर सेल्फ को भी क्षमा करेंगे। अपनी आज तक की गलतियों को भी क्षमा करेंगे। इस क्षमा के प्रयोग को और विशेष, विशाल बनाएं। और देखिए, पूरा आपका नेटवर्क, पूरा आपका कनेक्शन प्लान, उसे भी क्षमा करें जिसने आपके इंटरनेट को बंद कर दिया, उसे भी क्षमा करें। जिसने वाईफाई का पासवर्ड शेयर नहीं किया, उसे भी क्षमा करें। जिसने आपके टावर को ब्लॉक कर दिया, उसे भी क्षमा करें। एक क्षमा का प्रयोग बढ़ाते जाए अपने जीवन के हर मोड़ पर, हर व्यक्ति से, हर वस्तु से, हर स्थिति से, और इवन स्वयं से जो कोई कठिनाई क्रिएट हुई है, उसे भी क्षमा करें। एक क्षमा के प्रयोग के साथ अब लंबी गहरी सांस लेंगे। अब दोनों मुट्ठियों को बंद करेंगे, दोनों मुट्ठियों को खोलेंगे। मुट्ठी बंद करते टाइम फील कीजिए आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। मुट्ठी खोल रहे हैं, आप क्षमा का प्रयोग कर रहे हैं, सारे बंधनों को खोल रहे हैं। मुट्ठी बंद करें, सारे संकल्पों को ग्रहण कर रहे हैं। मुट्ठी खोल रहे हैं, सारे स्ट्रेस, एंजाइटी को अनलॉक कर रहे हैं। फील कीजिए और फिर पुनः दोनों हाथों को जोड़ेंगे, एक साथ दोहराएंगे। वी आर पीसफुल
powerful, purposeful. We are peaceful, powerful, purposeful. We are peaceful, powerful, purposeful. अपने भीतर उस शक्ति, शांति और लाइफ के उस पर्पस को फील करते हुए फील कर आप निरंतर अपनी लाइफ में पीसफुल जर्नी के साथ बढ़ रहे हैं, अपने अंदर के पावर्स को एम्पावर कर रहे हैं और अपने पर्पस के साथ अपने जीवन में गति और प्रगति कर रहे हैं। उस एक गहरी फीलिंग के साथ अब एक लंबा श्वास लेंगे और अरहम की ध्वनि करेंगे। पुनः एक बार पुनः तीसरी बार अब दोनों हाथों को जोड़ते हुए कोमलता से आंखों के पास ले जाएंगे। एक चीयरफुल स्माइल के साथ प्रयोग संपन्न। कितने लोगों ने अपने आप को माफ किया? कितने लोगों ने एफॉरमेंशन्ड सभी लोगों को भी माफ किया? रियल में माफ किया है क्या? यस और नो? वो नो कह रही है। आपका नाम क्या है? यस, हाँ, गर्ल, हाँ, आप खड़े हो सकते हैं एक बार? आपका नाम क्या है? गौरी जी। क्या आप सबको माफ कर पा रहे हो? माफ करना इजी है डिफिकल्ट? डिफिकल्ट। क्या आप माफ करने के लिए कोशिश करना चाहोगे? माफ करने से आपका फायदा है या नुकसान है? किसका फायदा है? सामने वाला है आपका? तो आपके फायदे के लिए आप क्या माफी की कोशिश कर सकते हो? जिसे भी आप माफ करना चाहते हो, नाम यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, पर हमारा कहना यही है कि आप उसे माफ करने के लिए एक बार के लिए आंख बंद करिए और सामने फील कीजिए उससे जिससे सबसे ज्यादा आप डिस्टर्ब हुए हो। आंख बंद करके उसे फील कीजिए, विजुलाइज कीजिए बंद आंखों के साथ। आप आंखें बंद कर सकते हैं। यस, उसे फील कीजिए जो आपको डिस्टर्ब करने वाला था, जिसने आपको धोखा दिया है, आपको परेशान किया है, सबसे ज्यादा मुश्किल क्रिएट करने वाला था। क्या आप उसे देख पा रहे हैं अपनी आंखों के सामने? अब देखिए वो आपको माफी मांग रहा है, वो आपको कह रहा है आई एम वेरी सॉरी गौरी, गौरी आई एम सॉरी, वो आपको कह रहा है। अब दोनों हाथों को सामने करते हुए आंख बंद करके दोनों हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में रखेंगे और फील कीजिए कि आप उसे माफ कर रहे हैं। आप कहेंगे आई एम फॉरगिविंग यू, आई एम फॉरगिविंग यू, आई एम फॉरगिविंग यू। अपने उस अंदर उस फॉरगिवनेस को फील करें। हाँ देवेश जी, अपने अंदर उस फॉरगिवनेस को फील करने की कोशिश करें। गौरी जी, क्या आप रियल में उसकी सॉरी को स्वीकार कर रहे हैं? वो दिल से आपको सॉरी कह रहा है, क्या आप दिल से माफ कर सकते हो? यस और नो? अगर आप दिल से माफ कर रहे हैं तो बंद आंखों के साथ चेहरे पर स्माइल लाएंगे। स्माइल कर आप दोनों हाथों से वापस आशीर्वाद देंगे, फॉरगिवनेस देंगे। आई फॉरगिव यू, आई ट्रूली फॉरगिव यू, आई डीपली फॉरगिव यू, आई रियली फॉरगिव यू। लेट्स बी द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। अब अपनी दोनों आंखों को खोल सकते हैं। धीमे धीमे अपनी आंखों को खोलते हुए प्रयोग संपन्न। इनके लिए इन्होंने जो इतनी हिम्मत की सबके सामने स्टैंड अप होकर ये करना, इनके लिए एक स्पेशल बहुत अच्छा। गौरी जी, आर यू फीलिंग काम बेटर देन बिफोर? यस और नो? पक्की बात? याद रखना, ऐसा नहीं दिखते तो वापस
देखते हैं तो माफ़ है। ठीक है, पक्की बात है। आपकी लाइफ में कौन कौन माफ़ करना इजी समझता है? माफ़ करना इजी है या डिफ़िकल्ट है? तो कौन कौन व्यक्ति हैं जिस डिफ़िकल्ट को भी अपना कल्ट बना सकता है और माफ़ कर सकता है? कितने लोगों ने रियल में दिल से माफ़ किया है? अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने माँ बाप को, अपने उन टीचर्स को, उन फ्रेंड्स को, उन कनेक्शंस को। कितने लोगों ने रियल में माफ़ किया है? कितने लोग माफ़ करना अभी भी डिफ़िकल्ट फील कर रहे हैं, माफ़ नहीं कर पा रहे हम? कई बहादुर लोग यहाँ पर हैं। यस, आप आगे आ सकते हैं क्या? यस, हाँ, क्योंकि आप बहुत स्पेशल हैं मुझे लगता है। 12 o'clock तक। हाँ सर। आपका नाम क्या है? सुशांत। सुशांत जी। सुशांत माफ़ कर सकता है? हाँ कर सकता, पर टाइम लगेगा सर बहुत। अच्छा, कितने लोग हैं? कितने लोग नहीं, कुछ ही लोग। कुछ को माफ़ करने के लिए कुछ समय चाहिए, काफ़ी लोगों को काफ़ी समय चाहिए, राइट और ना? वो 1 2 3 है या ज़्यादा है? या गिनती बाकी है अभी? एक हाथ दो लोग। 1 और आधा और 2 है? तो 2 लोगों को आप खड़े रहकर आंख बंद करके उन्हें विजुअलाइज करेंगे। विजुअलाइज कीजिए कि उन 2 लोगों को, पहले व्यक्ति को देखिए। सबसे बड़ा बिटर व्यक्ति कौन है? ये सबसे ज़्यादा झगड़ा हुआ है, कौन है? नाम नहीं लेना चाहता। नहीं, नाम तो बिल्कुल नहीं लेना है, उसकी बंद आंखों से उसे देखना है। क्या वो इस क्लास में है यहाँ पर? नहीं है। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप सबको फ्री कर दिया है उन्होंने। तो क्या आप डरते हैं ये लोग शेयर कर देंगे उसे? ऐसा है? हाँ, समझाइए सर क्वेश्चन। उनका अगर आप नाम लेंगे हाँ तो क्या उन्हें जाके ये कहेंगे? समझाएंगे। आप जिसको भी माफ़ करना चाहते हैं, क्या आप रियल में माफ़ करना चाहते हैं? हाँ कोशिश तो है। कोशिश है? पक्की कोशिश है? एकदम पक्का? तो आंख बंद कीजिए, सामने विजुलाइज कीजिए उस व्यक्ति को। वो लड़का है या लड़की? जो भी है, एक इंसान है, राइट? तो उस इंसान को माफ़ करने का प्रयास करेंगे। आप कितना खुश हो गए हैं। मैंने कोई जोक नहीं, मैंने तो खाली प्रश्न पूछा है। वेरी गुड। देखो, ये आपको स्ट्रेस फ्री करने के लिए स्माइल फ्री कर रहे हैं। फ्री स्माइल टू बी फ्री फ्रॉम स्ट्रेस। तो आप बंद आंखों से उसे विजुलाइज कीजिए अपने सामने। जो भी व्यक्ति है, लड़का है, लड़की है, जो भी है, उसको सामने विजुलाइज कीजिए और डीपली विजुलाइज कीजिए। और वो आपको फॉरगिवनेस सीख कर रहे हैं। दे आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। सुशांत, काइंडली फॉरगिव मी फॉर द लास्ट टाइम, काइंडली फॉरगिव मी। और आप क्या उस फॉरगिवनेस की फीलिंग को फील कर पा रहे हैं अच्छे से? यस सर। यस और नो? यस सर। तो उन्हें आप सिर हिलाते हुए, ऊपर नीचे करते हुए कहिए कि यस, मैं आपको क्षमा करता हूँ। बोलेंगे? यस, मैं आपको क्षमा करता हूँ। मैं दिल से क्षमा करता हूँ। मैं दिल से क्षमा करता मैं सच में क्षमा करता हूँ। हूँ। मैं सच में क्षमा करता मैं भीतर से क्षमा करता हूँ। हूँ। मैं भी दिल से क्षमा करता अब अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए क्षमा का प्रयोग करें। मैं भी क्षमा मांगता हूँ हूँ। मैं भी क्षमा मांगता हूँ और मैं क्षमा देता हूँ। और मैं क्षमा देता हूँ। मैं क्षमा लेता हूँ, मैं क्षमा लेता हूँ। क्षमा देता हूँ। क्षमा देता हूँ। और अब एक स्माइल के साथ, उसे पॉजिटिव वाइब के साथ कहिए कि आई एम विथ यू। हाँ बिल्कुल। ओ मरम। बहुत अच्छा आपने काम किया सुशांत जी। थैंक यू। क्या आप अपने आप को रिलीफ फील कर पा रहे थोड़ा बहुत? हाँ सर। 10% हाँ और मोर? बिट मोर। बिट मोर। वेरी गुड। थैंक यू। तो मेक अ बिट टू फ्री आवर सेल्फ फ्रॉम द बिटरनेस। ओके, ये आप इनको दे दीजिए। वेरी गुड। सुशांत जी के लिए एक स्पेशल, क्योंकि यहाँ आके स्टैंड करके इतना कहना सरल नहीं होता है। और कौन है जो क्षमा नहीं कर सकता है? उसे बताने, नाम बताने की जरूरत नहीं है। और कौन कौन क्षमा कर सकता है? किस किसने क्षमा कर दिया? ऑलरेडी क्षमा कर दिया, अच्छे से क्षमा किया है। वो अपने अपने हाथ ऊपर करेंगे। जिन लोगों के हाथ ऊपर नहीं, वो क्षमा नहीं कर पा रहे, राइट? तो अब आप दोनों हाथों को इस तरह से करेंगे और कहेंगे यस वी कैन। यस,
हम क्षमा कर सकते हैं। यदि आप क्षमा कर सकते हैं, आपके अंदर वो शक्ति है शांति और सामंजस्य से जीने की, तो एक साथ कहेंगे यस वी कैन। यस, एक साथ, एक साथ, और एनर्जी के साथ, फुल पावर के साथ, सब एक साथ। वेरी गुड। यस वी ऑल कैन मेक दिस वर्ल्ड अ वंडरफुल प्लेस टू लिव इन by bringing and building positive good understanding with each other। तो आज के सेशन में कितने लोगों को रियल में दिल से आनंद आया है? दिल से आया। उसमें से कोई एक व्यक्ति अपने स्थान पर खड़ा हो सकता है जिसको रियल में आनंद आया है। जैसे एग्जाम्पल ग्रीन, जो फर्स्ट लाइन में है, गर्ल्स में फर्स्ट लाइन लाइट ग्रीन। यस, आपका नाम? कुणाली जी, आज का सेशन में आपने क्या सीखा और व्हाट वाज द बेस्ट पॉइंट दैट यू विल टेक विद योरसेल्फ? व्हाट्स योर टेक अवे? टू बी अ स्ट्रेस फ्री पर्सन। वेरी गुड। इन्होंने स्ट्रेस फ्री होने का संकल्प लिया, इनके लिए एक स्पेशल। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं। और कौन है जो अपना अनुभव आज शेयर करना चाहेगा? यस, पीछे पीछे जो हाथ ऊपर कर रहे हैं। यस यस यस, पीछे पीछे। हाँ, ये आपका नाम? आपका नाम? हाँ, मनीषा गिडिया जी। व्हाट्स द टेक अवे टुडे? क्या आप अपनी लाइफ में उस हैप्पीनेस जर्नी पर मेहनत करना चाहेंगे? पक्की बात? बहुत अच्छा। इनके लिए भी एक और कौन है जो अपने अनुभव के साथ आगे आएगा? पुढे 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 कुड़े कुड़े पुढे 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 उड़े आगे 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 आगे। कितना आगे बढ़ेंगे? आपका नाम? सुमित। सुमित जी, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? यस। Thank you, sir, for taking this. Thank you, ma'am, for this beautiful session. And I would like to say, be yourself and be stressful and forgive all. बी स्ट्रेसफुल? Don't be stressful. अच्छा, ऐसा है क्या? नहीं, कभी कभी स्ट्रेसफुल होना भी एक हमारी बन जाती है, जर्नी बन जाती है, पर स्ट्रेस को भूलना है। यस और नॉट? Yes, sir. पक्की बात? इसी क्रम में लास्ट रो में। यस, लास्ट। हाँ, व्हाट्स योर गुड नेम? Tanisha. हाँ जी। So from today's lecture, I'm going to take with me is to be yourself. Don't be stress free. डोंट बी स्ट्रेस फ्री। Be stress free and be happy. And जो भी आउटर चीजें हो रही है हम उसे अवॉइड कर सकते हैं if we are internally peaceful. वेरी गुड। इनके लिए भी है। अब हम सुनना चाहेंगे कोई दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप जैसे माइंडफुल लोग बोलेंगे। यस, आपके पीछे। हाँ, यस, एक क्वेश्चन हम आपसे सुनना चाहेंगे। यस, आपकी कोई समस्या है क्या? हाँ, थोड़ा बीच में। नहीं, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, मतलब खुश हूँ मैं। तब नहीं से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब वेरी गुड, दैट्स द बेस्ट क्वेश्चन। तो कोई क्वेश्चन ना रहे और कोई प्रॉब्लम ना रहे, तो आप लाइफ में रियल में खुश हैं? क्या सब लोगों को खुश रखते हैं? हाँ, मुझसे जैसा हो सकता है वैसा। आपसे कैसा हो सकता है? मतलब ऐसा पर्पसली किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए और ऐसा स्ट्रेटली किसी को बुरा लगे वैसा नहीं बोलना चाहिए। अपने स्ट्रेट नहीं बोलना चाहिए? मतलब आगे के फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छी बात है कि आपका नाम? अनुश्री। अनुश्री के लिए एक स्पेशल। और पीछे आपके पीछे एक को देंगे। अब अनुश्री का जहाँ मन होगा वो देंगे। ठीक है, आप। यस, आपका नाम? सर प्रथमेश। सर प्रथमेश? ओनली प्रथमेश। अच्छा, ओनली प्रथमेश। यस प्रथमेश। यस। सर मैं तो ये समझता हूँ कि मतलब हम खुद को जो क्वेश्चन हमको रहते हैं वो तो हमको ही खुद ढूंढना पड़ता है अंदर इनर सेल्फ में जाके। तो एज सच आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस राइट नाउ। वेरी गुड। पर क्या आप इनर सेल्फ के लिए तैयार हैं? यस सर।
तो इसी के साथ हम इसको जर्नी को कंप्लीट करते हैं। अब हम सुनेंगे, हमारे ध्यान से सुनो बच्चों, स्पेशली आज के जो यंगस्टर्स, हम सुनेंगे हमारे योगेश जी को दिस ब्यूटीफुल सेशन ऑर्गेनाइज करने में जिन्होंने बहुत मेहनत और श्रम किया। तो हमारे योगेश जी टांडेल जिन्होंने मेहनत की है सबको जोड़ने की, और हमारे दीक्षा जी की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबको ओम हरिओम। योगेश टांडेल और उनके फैमिली की तरफ से मैं ये जो अनुभव कर रहा हूँ, मैं कम से कम 1-2 महीने पहले गुरु महाराज के सानिध्य में आया अरविंद आकर जी के माध्यम से, और मैं बहुत काफी इम्प्रेस हो गया। आदमी को अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो सब कुछ उसके पास ही रहता है, लेकिन वो गली गली ढूंढता रहता है। खुद में शांति लाके दूसरों को कोई भी तकलीफ न देने, खुद के काम खुद से करे और समझ ले कि सामने वाले को परेशानी कैसे नहीं हो, मतलब उसका आंसर उसके पास ही है। सामने वाले को बिना परेशान करके अगर वो खुद से ढूंढे तो दुनिया में किधर भी समस्या नहीं रहेगी। और जो लोग सुखी हैं, समाधानी हैं, धनी हैं, दौलत के, अकल के, बाकी सब चीजों के, वो अगर थोड़ी सी चीजें अपने को सामने वाले को शेयर करे तो दुनिया में बहुत से समस्या और समाधान हो जाएगा सब समस्याओं का। हम लोग मुनि जी से सीखना चाहते हैं कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसको नशा मुक्त कैसे करें, क्योंकि नशा एक ऐसा जरिया है जो हर सुख को, हर संसार को बर्बाद करने की शुरुआत नशे से होती है। जो एक बार आदमी टेस्ट तो कर लेता है और टेस्ट करने के बाद वो 2 बार करता है, 3 बार करता है, वीकली करता है, मंथली करता है, ईयरली करता है, ऐसा सोचता है, लेकिन वो ईयरली से 31 न्यू ईयर से मंथली पे आ जाता है, मंथली से वो 15 डेज पे आता है, फिर वीकली पे आ जाता है, फिर वो डेली पे आ जाता है। डेली पे आ गया तो समझो अपना लाइफ बर्बाद हो सकता है। इसी के ऊपर ये विषय हमको बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि हर घर नशा मुक्त हो, हर फैमिली नशा मुक्त हो, इससे अपने परिवार का, अपने खुद के जीवन का उत्थान हो जाएगा। गुरु जी का जो सब्जेक्ट है उत्थान प्रोग्राम और अपग्रेडेशन, यहाँ आके जो उनके स्वच्छ, सुंदर और प्रभावशाली विचार उन्होंने प्रकट किए, और यहाँ के अपने जो प्रिंसिपल साहब है विलास साहब जी कदम, जो खुद उनके भाई है, अभी गुजर गए, इंतकाल हो गया उनका, कदम साहब, उनके आशीर्वाद से, अभिप्राय से और हम सब के सहयोग से यहाँ का परिसर, यहाँ से 4-5 किलोमीटर के रेडियस में सीबीडी हो, खारगर हो, बेलापुर हो, ये सब लोगों का हम ये फैमिली, कदम फैमिली इधर आने के कारण हम लोग को ये सुविधा हुआ है एजुकेशन का, तो उन्होंने हमको ये जगह अवेलेबल कर दिया गुरुजी के लिए और हमारे लिए। ऐसा हर साल वो दे, ऐसा मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा। इससे बड़ा प्रोग्राम इधर हम लोग लेंगे गुरुजी, या हम लोग हर साल कोशिश करेंगे, और हमको जितना कुछ भी धर्म का काम बोलेंगे उसके लिए हम लोग सब क्रम से पहले रहने की कोशिश करेंगे, यही हमारा इच्छा है। आज सेल्फ के अपने पीआई साहब है, कमिश्नर साहब ने स्पेशली इनको भेजा है, उनके तरफ से कुछ कहेंगे। आज ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से आप इंस्पेक्टर हैं, आप जुड़े हुए हैं, और इस नशा मुक्ति की एनर्जी के साथ हर युवा शक्ति को जोड़ने का जो ये प्रयास कर रहे हैं वो अपने आप में एक विशिष्ट है, और आज के इस कार्यक्रम में इनका एक विशेष वक्तव्य हम सुन पाएंगे। मेरा नाम विजय सिंह है। मैं यहाँ पे जो एंटी नार्कोटिक सेल क्राइम ब्रांच नई मुंबई, यहाँ पे मैं अभी कार्यरत हूँ। तो अभी तो वैसे ज़्यादा टाइम हुआ है, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा मैं। बस आपसे अपील करूँगा कि आप जो नशा जो लोग करते हैं जनरली यंगस्टर, तो उन्होंने वो कोई स्ट्रेस रहेगा या जो भी कोई हैप्पीनेस रहेगा उसके लिए शुरुआत हो जाती है तंबाकू, दारू, सिगरेट, इससे शुरू होके बाद में वो ड्रग्स पे जाती है, और उस आदमी का फिर पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, उसका फैमिली बर्बाद होता है, सोशल इम्पैक्ट उस पर बहुत बढ़ते हैं।
तो कृपया कोई भी ड्रग का सेवन न करें। अगर कोई करता है तो उसे रोके, उसके फैमिली वालों को बताए, आप खुद उसे दूर रहे। और बहुत सारी बातें करने की जैसे है इसमें, अगर कभी टाइम ज्यादा नहीं है तो बस मेरा आपसे यही अपील रहेगा कि आप ड्रग से दूर रहे, अमली पदार्थों से दूर रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसी क्रम में हमारे महावीर जी कोठारी जीतों से अपने विशेष उद्गार के साथ। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। यहाँ पर उपस्थित मुनिश्री अभिजीत कुमार जी और मुनिश्री जागृत कुमार जी, और यहाँ पर वीरा साहब जी, कदम साहब, पुलिस निरीक्षक महोदय, तांडेल साहब और तेरापन समाज खारगर सभी से बताए हुए, और यहाँ से सभी छात्रगण, शिक्षकगण, सादर जय जिनेन्द्र। आज मुनिश्री अपने मिशन को लेकर चले हैं भारत भर में पदयात्रा के साथ, नशा मुक्त, तनाव मुक्त, रक्षा अभियान के साथ। इसी क्रम में आज यहाँ बेलापुर इस भारतीय विद्यापीठ में आने का मौका मिला, और भारतीय विद्यापीठ के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता और पूरी टीम को धन्यवाद कि आपने ये सुंदर आयोजन किया, जिससे यहाँ छात्रों को और भी सीखने का मौका मिले नशा मुक्त के द्वारा, और तनाव मुक्त कैसे रह सके। और पूरी टीम को धन्यवाद, तेरापन समाज खारगर को धन्यवाद कि उन्होंने ये सुंदर आयोजना सभी के साथ की, और इसी तरह के प्रोग्राम और भी करते रहें। धन्यवाद। कल भी एक प्रोग्राम खारगर में आयोजित किया है। समझो जो कोई आज आया है, कल का सब्जेक्ट भी अलग रहेगा, क्योंकि मुनि जी हर बात जो बात बोलते हो रिपीट मैक्सिमम नहीं होती, नया ही रहता है। जैसा नया सूरज, नया सवेरा, वैसे नए विचार। कल भी खारगर में आप इसका आनंद या फायदा उठा सकते हैं। खारगर में सेक्टर 3 में बेलपाड़ा गांव में श्री कृष्ण विला श्री गरज साहब के हॉल पे रखा है प्रोग्राम, तो वहां भी आप उपस्थित रहेंगे तो कोई आपका सबका उधर स्वागत रहेगा। खारगर परिवार और खारगर तेरापंथी समाज के ओर से सबको जाहिर निमंत्रित करता हूँ, आप वहां भी पधारें। ओम हरि। इस कार्यक्रम के समापन के साथ अब अपने अपने स्थान पर एक बार खड़े हो सकते हैं। हम एक मंगल मंत्र का प्रयोग करेंगे, जिसे हम अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी को निरंतर बनाए रख सके, बरकरार कर सके। दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं भवज्जामि अरहंति शरणं भवज्जामि सिद्धि शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं भवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण भिक्षुनो नाम गुणयोलक समिरण किया। सरी अचिंत्या कान सरी काम सरी अचिंत्या काम।